हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आई एम बैक टू अनदर रिव्यू। और सुनाओ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਗ ਬॉस 17 ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਚਟਪਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਓ ਸੌਰੀ ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਸੱਸ, ਬਾਪ ਰੇ ਬਾਪ, ਤੌਬਾ ਬਈ ਤੌਬਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਟਮ ਬੰਬੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਭਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਸੱਸ ਕਮੋਲਿਕਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਂਪ ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚ ਵੈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬੜੀ ਹਸਮੁਖ ਔਰਤ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ? ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਨਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪਲ ਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਵੇਰੀਆ ਨੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਔਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ अंकिता दी नहीं मानती, लेकिन ऐश्वर्या ने फिर भी बोलिया कि भाई अंकिता क्या कहते हैं, मैं अंकिता दी सस जो अंदर गई तो मैं कह रही हूँ की बोल रहे ने। अंकिता दी सपोर्ट कर रही सी कि जो भी है, लेकिन वो है बिल्कुल सही। विक्की कोई दुध दा दुलिया ना, बाकी विक्की दुध दा दुलिया ने। तुसी अमीर जे, लैंडलॉर्ड जे, रिच जे ते वो भी कोई घट नहीं अंकिता लुखंडे ना है हुंदा। आंटी जी ते आंटी जी कुछ अपने पुत्र ते भी ध्यान दो ते फिर ਕੁਛ ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਫੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ अच्छी जुबान है, उर्दू सब जुबानें अच्छी ने तो उनसे गल करने आ जाओ भाई। बल्ले बल्ले खालत दही बल्ले। हाँ जी, तो हम आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैं अब आ गया हूँ अपनी उर्दू में आप लोग के साथ बात करने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना मेरी फुल टाइम कोशिश होगी कि मैं अब डेली दूँ व्लॉग करूँ, सुस्ती छोड़ दूँ। और दूसरा मैं कहूँगा जैसे ही आज का एपिसोड शुरू हुआ तो विक्की और मनारा की आपस में बात होने लगी। जब विक्की को पता है कि उसकी बीवी चिढ़ती है तो उसको इस चीज़ की अकल नहीं आती कि उसको वो काम नहीं करना चाहिए। अंकिता मुनव्वर के साथ बात करें तो विक्की को प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसी तरह बीवियाँ तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ में होती हैं। पहले मैंने सोचा अंकिता को इग्नोर करना चाहिए, अंकिता को छोड़ देना चाहिए, अंकिता को इस बारे में नहीं वो करना चाहिए, अपने इग्नोर मारे। वो कहते हैं ना जब आप इग्नोर करते हो तो चीज़
क्या नाम है, आपके पीछे आती। लेकिन बात ये आ जाती ना वो उसकी दोस्त है, ना वो उसकी कोई फ्रेंड है, ना गर्लफ्रेंड है, वो उसकी बीवी है। तो वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, आप उसको नहीं पसंद आ रहा, अगर आपको जिस तरह किसी के साथ अंकिता का नहीं पसंद आएगा, तो आप बोल देते हो। अगर इसी तरह आप वो कपड़े अगर कह रही हैं यूँ आपको पता है आपकी बीवी को पसंद नहीं मना रहा, तो जानबूझकर नहीं मना रहा है, तो आप शरारत करी क्योंकि अंकिता और उन सबकी लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा, ये भी टॉर्चर टास्क जो हुआ था, तो वो तो करेगी। अंकिता को चढ़ाने के लिए वहाँ ईशा भी कह रही थी कि आपको कर रही है, आप इग्नोर करें। और वो भी कह रही थी कि हाँ, ये मेरे लिए मनारा तो करी थी, तुम बोलो भई मैं क्यों बताऊँ कि तुमने क्या पहनना है? तुम दूसरों से पूछो, मुनव्वर से पूछो, अभिषेक से पूछो, मैं क्यों बताऊँ? इस आदमी को बहुत मज़ा आता है अपनी बीवी को चढ़ाने में। बाहर से ऑडियंस आ रही है, तो वो भी यही कह रही है, जो गेस्ट आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। अपनी बीवी का स्टैंड लेता नहीं, अपनी बीवी की बात मानता नहीं। वो रो रही है, वो चिढ़ रही है, फिर भी ना अभी मुझे तो ऐसा लगता है कहीं बाहर जाके डिवोर्स ना हो जाए, लेकिन अगर इनकी नहीं बनेगी तो। क्योंकि अंकिता अपनी तरफ से हर बहुत सी बातों को इग्नोर करी, लेकिन अब वो चिढ़ गई है। अब वो चिढ़ गई है और वो ये सोच रही है कि मैं इस बंदे के साथ अब नहीं रह सकती, और मुझे लगता है बाद में इनका डिवोर्स हो जाएगा, बाकी अल्लाह ना करे हो ये। और इसमें ज़्यादा हाथ जो होगा वो विक्की का। तो विक्की अब अपनी बीवी को चढ़ा रहा है, और फिर बाद में जब बिग बॉस ने आज का जो एपिसोड हुआ वो पब्लिक ने अंदर आना था और रोस्ट होना था, अपने किसी ना किसी पे सब पे रोस्ट करना था, तो उस बारे में एक राइटर अंदर आए, उन्होंने एक अच्छे तरीके से इन सबको गाइड किया, और वो जोक्स और बताते हैं। तो तब वो जब अंकिता अंदर गई, तो वहाँ पे ईशा से जब विक्की ने बात की, तो ईशा ने सेम यही बोला कि विक्की भाई आपको जब पता है कि वो नहीं पसंद करते, लेकिन विक्की जी सुन ही नहीं रहे हैं, विक्की जी को तो अपनी मस्ती छाई हुई है, वो अंकिता की बात पे ध्यान ही नहीं, उस बारे में आते ही नहीं है। आयशा ने भी समझाया, लेकिन नहीं। अब ये विक्की साहब भी चाह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो या कोई बात हो, तो अब ये विक्की जी चाह रहे हैं, उसमें बिल्कुल गलती नहीं है। अपना क्या कहते हैं, अंकिता की। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा चेंजिंग रूम में मनारा को बोल, जब पता है कि इसकी बीवी क्या नाम है नहीं पसंद करी, तो मनारा को बोल रहा है मानो, 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 मानो। बड़ा मानो, मानो कह रही है, इसका मतलब वो फिर कह रही है कि मुझे ना चढ़ाओ, मेरा दिमाग फिर जाएगा। वो हो रही है, वो चिढ़ रही है, और वो कह रहा है मानो, 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 मानो। छुन्ना-मुन्ना बन के मानो, मानो कर रहा है, और वो मज़े ले रही है मनारा। जब उसी का शौहर उसको अपनी बीवी को करे, तो वो क्यों ना वो करे। तो मानो मानो बोल रहा है, उसको चढ़ा रहा है। अगर वो अभी विक्की को सही कह रही थी, अगर मैं भी मुनव्वर के साथ यूँ करूँ तो ये कैसे बोलेगा? तो विक्की आंटी जो विक्की की अम्मी हैं, उनको मैं ये कहूँगा आंटी जी पहले अपने बेटे को भी देख लेना, टीवी पे नज़र आ रहा होगा, या आपने अपने घर में बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई होगी एलसीडी, तो उसमें नज़र आ रहा होगा आपको। तो उस पे भी ध्यान के मानो मानो वो दूसरी लड़कियों को कह रहा है। क्या बात है भई! फिर जी अपना स्टार्ट हो गया रोस्ट, जो एक पब्लिक ने आना था, एक शो जो था वो स्टार्ट हो गया। शो के जो खास एंकर आए थे वो थे अपना कृष्णा आए, कृष्णा और सुरजील यूं करके नाम है, सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, तो मुझे नाम नहीं आ रहा। तो वो आए, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी एंकरिंग की। तो फिर सबसे पहले उन्होंने पहले तो काफ़ी सारा एपिसोड कृष्णा और उनके पार्टनर पे हो गया। सारा इतना लंबा, भई पहले तो आधा पूरा तो एपिसोड उसमें चला गया। तो वो ख़ैर उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी की, लेकिन जो इतनी ख़ैर जो हमारे कॉमेडियंस हैं ना, जो पाकिस्तान का थिएटर है, वो तो कमाल है। मैं ये नहीं कहता इंडिया में नहीं है। कृष्णा और भारती का मुझे बहुत मज़ा आता है। बाकी जो वो कर रहे थे वो बहुत अच्छी कॉमेडी, लेकिन इतनी नहीं, मैंने वो सारा निकाल दिया। और फिर जी उन्होंने सबसे पहले अभिषेक आया, अभिषेक ने बहुत अच्छी रोस्टिंग की, बहुत ही अच्छा बोला, और क्या नाम है, और बहुत अच्छी मज़े की बातें बोली, बहुत ही अच्छा उसने किया, बड़ी सही जो एक मज़े का सब में किया ना, मुनव्वर का भी अच्छा था, लेकिन बट ये सबसे अच्छा अभिषेक का था। अभिषेक ने विक्की को बोला कि आप किसी पे मानों पे ध्यान देने के बजाय आप अपनी बीवी पे ध्यान दें, अंकिता पे ध्यान दें। और मुनव्वर को बोला कि, और मुनव्वर को वो उसने पढ़ी है क्या कि मुझको कोई मिल नहीं रही है, और इसको इतनी अंदर मिली जा रही हैं। और ईशा के बारे में तो उसने बड़ा कुछ बड़ा आज बड़ा यूँ करके उसने ज़बर तरीके से ईशा को भी काफ़ी सारी सुना डाली। और क्या नाम है, जिस पे ईशा उस टाइम ज़ाहिर-सी बात है वो गेम थी तो क्लैप कर रही थी, और वो अपना काम कर रहा था, तो वो ईशा भी वो करे, लेकिन ईशा को लास्ट में कहता है कि मैं तो लोगों को निकाल देता हूँ, फिर मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो
थप्पड़ मार के निकाल देता हूँ। फिर बोला मैं तो मार के निकाल देता हूँ। अब समर बार पकड़ा होगा, तपड़ा होगा। ख़ैर अब विक्की जी आए, विक्की जी ने बस नॉर्मली रोस्ट किया। आयशा ने भी वही अपना क्या कहते हैं मुनव्वर और ये वो उसपे उसका भी नॉर्मल था। ईशा ने भी अभिषेक को बोला बहुत कुछ उसने ईशा ने फिर अभिषेक को बोला ये तो लोगों को हाथ-पैर मार-मार के ही आगे जा रहे हैं और इस तरह की बातें और बड़ी मज़ेदार बातें की और बड़ा अच्छा-अच्छा ईशा बोली जो बड़ा मज़े का लगा। ईशा ने भी बहुत अच्छा रोस्ट किया। अरुण का बस नॉर्मल ही था। अंकिता भी आई, अंकिता ने भी बड़ी बातों-बातों में अंकिता ने कह दिया अब कुछ नहीं रहा विक्की और मेरे में उसने बातें लगा दी और जो कॉमेडियंस आए थे उन्होंने भी कहा कि अंकिता विक्की स्टैंड ले लो अंकिता के लिए। तो इस तरह के मज़ाक लोग बना रहे हैं तो यहाँ से सोच लेना चाहिए आंटी जी आपको भी और विक्की को भी। तो मुझे और अरुण का भी ठीक था, विक्की का अंकिता का भी अच्छा था, उसने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। मुनव्वर तो फिर इस चीज़ का माहिर है, उसका तो काम ही ये है। मुनव्वर ने भी बड़े मज़े-मज़े से बातें लगाई, बातें बोली और उसने मुनव्वर ने मनारा के बारे में बोला, मनारा के क्या नाम है क्या और ये वो और फिर अभिषेक को बोला गर्ल्स से बदतमीज़ी के बारे में कहा कि तुम बहुत बदतमीज़ी मज़ाक-मज़ाक में मतलब सबने अपने दिल की भड़ास निकाली क्योंकि रोस्ट ऐसे ही होता है तो इन सब ने इसी तरह किया। फिर उसके बाद क्या नाम है अपना अब ये पब्लिक को बहुत पसंद आया, फिर पब्लिक को बिग बॉस ने क्या नाम है पब्लिक को कहा कि इन जो अब चारों नॉमिनेट हैं, इनमें से किसी को आप नॉमिनेट करें, वहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया। लेकिन बात कहते हैं अब नॉमिनेट तो हैं ईशा, अंकिता, विक्की और आयशा। आई थिंक सो आयशा चली जाएगी। अब आगे का पता नहीं, आयशा ही जाएगी, बाकी ये तो 3 स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं थोड़ी से टॉर्चर टास्क हुआ। टॉर्चर टास्क जो था ना बहुत अच्छा हुआ, बड़ा इन लोगों ने टीम्स बनी थी, क्या नाम है अंकिता, विक्की और अपना आयशा, ईशा की थी, अरुण, मनारा और अभिषेक और मुनव्वर की थी। ये सबसे पहले तो गए मनारा, अभिषेक मुनव्वर और अपना अरुण इन लोगों ने चारों ने मिलके बहुत उनका टास्क था, उन्होंने बहुत कुछ किया, लाल मिर्चें ये वो सबसे पहले तो उन्होंने बनाया उसको मनारा को क्योंकि मनारा होती तो अभिषेक ने वैसे ही गेम से निकल जाना था। मनारा ने होना था तो मुनव्वर ने निकल जाना था और अरुण ने होना था तो या अभिषेक ने होना था तो उन्होंने क्योंकि बीच में एक उन्होंने बैक ऊपर बेल्ट बांधी हुई थी वो प्लास्टिक की तो जिसकी वजह ये दोनों इन लोगों ने काफी उसके ऊपर फेंका फांकी जो दुनिया के मसाले लाल मसाले वो मसाले जो फेंके आंखों में गए ये वो बहुत कुछ मैं कहता हूँ कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो दिल की भड़ासें थी सारी लेकिन ये टास्क ही जब बिग बॉस ने टॉर्चर टास्क दिया तो ये ऐसे ही होना था अब इसमें क्या ना करते क्या नहीं करते देखा जाए तो बीच में ईशा पानी फेंक रही थी काफी सारा सबको तो वो मना कर रहे थे क्योंकि हर किसी ने जीतना है तो यही कर सकते थे ना टॉर्चर लाल मिर्च और ऐसी चीजें वो अगर आपने हर किसी ने जीतना है तो फिर ऐसा तो अगर आप बचाने लग जाएंगे या अपने आप को सेव करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा खैर बड़ा कुछ हुआ इन लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत हुए इन लोगों के फसाद बहुत हुए इन लोगों ने एक दूसरे को बातें लगाई एलिगेशन और ये वो काफी टास्क लेकिन फिर जब नेक्स्ट इनका आना था तो इन लोगों ने सारी चारों ने विक्की ने अंकिता ने ईशा ने और आयशा ने सारी चीज़ें चबा दी, मसाले चबा दिए, तेल चबा दिए, सर्फ़ चबा दिए, हर चीज़ मतलब पूरे घर में वहाँ फैला दी। बाल्टियाँ तक इन्होंने ऊपर बाहर बिग बॉस की छत पर फेंक डाली, जिसकी वज़ह से अगले दिन जब इनका टास्क हुआ तो बिग बॉस ने बोला कि आप लोगों ने इस तरह की चीटिंग की है तो आप लोगों को अब ये सारा मैं दूसरी टीम पे छोड़ता हूँ, उसको अपना सीक्रेट रूम में बुला के उनसे बात की और उनको बोला ये आप पे छोड़ता हूँ या आप लोग ये टास्क कर लें या आप लोग फाइनल में चारों चले जाएंगे और ये दोनों चारों को नॉमिनेट कर लें इन लोगों ने उनको नॉमिनेट कर दिया जिससे उनको फायदा हो गया इनको नुकसान हो गया अगले खुश हो गए इन लोगों ने चीजें छुपा डाली तो फिर बिग बॉस चाहते तो चीजें ला भी सकते तो उन्होंने बोल ऑप्शन भी दी कि या मैं चीजें सारी ला दूंगा या आप लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिमाग से काम लिया इनको नॉमिनेट कर दिया सबको ठीक है और वो अगले सेफ हो गए इसी तरह क्या नाम है क्योंकि कुछ भी हो सकता था या ये लोग हार जाते या वो लोग हार जाते लेकिन उन्होंने चांस ले लिया उन्होंने बहुत अकल से काम लिया तो कोई भी होता तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने अब ये वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को ये वो लग गया देखा जाए मेरी नजर में गलत नहीं उन्होंने सही फैसला किया इन लोगों को लगे कि टास्क नहीं हुआ हम अब नॉमिनेट हो गए
भाई जो लड़ाइयाँ हुई हैं मनारा के साथ, ईशा की, अंकिता की, एक दूसरे को क्या मज़ेदार और क्या मनारा 1 और ये 4 और उसने वो बन के अब मनारा बिल्कुल ठीक हो गई है मुनव्वर के साथ अब बिल्कुल सही चल रही है। वरना तो ये बड़ी यूँ-यूँ जैसे आयशा का पत्ता इसने देखा वो मनारा वापस से अपने उसमें आ गई और फिर ईशा मनारा की वो हुई, आयशा मनारा की वो हुई, अंकिता मनारा की वो हुई, चल मुनव्वर की और अंकिता की तो खत्म हो गई। देखा जाए तो मेरी नज़र में मुनव्वर की कोई इतनी गलती नहीं थी। भई तुम लोगों ने चीज़ें छुपाई, उन लोग के लिए, उन्होंने वो चीज़ें रख ली। अब वो तुम लोगों की अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लग्ज़री चीज़ें थी या जो भी थे उन्होंने मसाले रख लिए, उन्होंने छुपा लिए, वो क्यों दें? जब आप लोगों ने छुपाए अगलों ने निकाल लिए, वो आपको क्यों दें? क्यों वापस दें? कि कल अगर टास्क होगा तो फिर वो आप उन पे इस्तेमाल करें। भई मुनव्वर की और विक्की की फुल टाइम लगाई, वो जो इनकी बातें एक-दूसरे को बातें लगानी, ईशा ये मनारा तो भई मुनव्वर की गोदी में बैठ गई और करने लग गई। तो जिस पे अंकिता ने बोला अब गोदी में बैठ गई, ईशा ने बोला गोदी में बैठ गई, आशा समझा रही थी ना बोलो तुम लोग बोले कि भई गोदी में बैठ के तो फुल टाइम उसने अपने जो दिल की चाहत थी वो पूरी कर ली। मुझे समझ नहीं आती मुनव्वर में ऐसा क्या है जो सारी इतनी लड़कियाँ इस पे मरती हैं, निछावर रोती हैं, प्यार करती हैं, कमाल है भई। ठीक है, लड़कियाँ तो ख़ैर लड़कियाँ हों या लड़के आजकल तो चॉइस सी सबकी पता नहीं क्या है लेकिन मुनव्वर ठीक है लेकिन इतना भी भई उसपे बड़े गैट्स हैं। मैंने तो बड़े-बड़े ऐसे लड़के देखे हैं जिन पे लड़कियाँ फ़िदा हो जाती हैं। ख़ैर क्या ही बात करें, चॉइस तो साइड में ही कर देनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा विक्की की और उसकी और मनारा अब उसके सपोर्ट में और इन लोगों ने एक-दूसरे पे लड़ाई अब ये जहाँ तक अंकिता की और अंकिता ने शुरुआत की, "तू यूँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मेरी नज़र में अंकिता वहाँ गलत थी, वो मौका ढूँढ रही थी आई थिंक सो कि वो उसकी और मुनव्वर की लड़ाई जो क्योंकि विक्की को ज़रा वो हो रहा था, विक्की पसंद नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो करेगी, क्या नाम है अंकिता ने पहले शुरुआत की क्योंकि मुनव्वर की और विक्की की लड़ाई हो रही थी और ऐसा कुछ नहीं उसने छुपा लिए भई जैसे तुम लोगों ने किया अगले ने छुपा लिए। तुम लोगों ने जब सारे मसाले एक डस्टबिन वो शोपीस था उसके अंदर डाल दिए तो अगले ने वहाँ से निकाल के छुपा लिए। अब इन लोगों ने खींचा खानी ये वो इन लोगों को डर था, इन लोगों ने लग रहा था कि अंकिता बस चाह रही थी किसी तरह हो जाए। मुनव्वर यूँ क्योंकि मुनव्वर की मनारा की वजह से लड़ाई क्योंकि अंकिता मुनव्वर से बात कर रही थी, भीम में मनारा थी और जहाँ पे देखा जाए तो मुनव्वर को वो कह रही थी इसको रोको, मना करो, वो नहीं लेकिन भई तुम 4 कर रहे थे तो वो जो 4 जीते हैं तो वो तो एक जगह वो यूँ करेंगे ना तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बना दी। खैर बड़ा कुछ हुआ इन लोगों ने एक-दूसरे पे बहुत की। फिर उसके बाद जी अगले दिन जब बाल्टियाँ उतारने लगा मुनव्वर ऊपर से विक्की पता नहीं अंकिता ने देख लिया या आयशा ने देख लिया किसने आवाज़ें दी तो वो विक्की आ गया। वो दरख्त पे चढ़ के वाइपर से बाल्टियाँ नीचे उतार रहा था कि टास्क का तब नहीं पता चला था, बिग बॉस ने नहीं बताया था कि ऐसा होगा। भई इन्होंने वो उस टाइम ना इन लोगों विक्की आ गया, उसने कहा कि छोड़ दे, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूँगा ये वो ऊपर से बाल्टियाँ उतारने लग गए, इनकी खींचातानी पड़ गई, वहाँ पे अभिषेक की भी हो गई, वहाँ पे क्या नाम है एकदम विक्की ऊपर से मुनव्वर गिरने लगा था, बच गया तो उसने तो भई इसका गिरेबान पकड़ लिया, गिरेबान पकड़ के जो झटके दिए, जो इनकी लड़ाई और भई विक्की को उसने हिलने नहीं दिया, विक्की यूँ-यूँ था, उसने तो पूरा चक्कर अंकिता आ गई, सब आ गए, अंकिता ने कहा छोड़ मेरे शौहर को, भैंस की तो फलानी ये वो, उसने भी छुड़ाने की कोशिश की तो मुनव्वर की और विक्की की जो फाइट हुई वहाँ पे ईशा की और अरुण की हो गई, ईशा की अभिषेक की हो गई, ईशा अरुण की अपनी वहाँ चल रही हैं। विक्की की और मुनव्वर की अपनी चल रही है। कमाल ही वैसे होगी जो मेरी नज़र में अगर किसी को फाइनल में आना चाहिए तो मेरी नज़र में आना चाहिए ईशा तो आनी चाहिए और अंकिता इन दोनों में से किसी को आना चाहिए। अभिषेक ने भी बहुत अच्छी किया लेकिन ईशा ने हर चीज़ एक लड़की होके फेस की है सब कुछ तो और अंकिता अब आगे देखें कौन जीतता है। ये 4-5 तो पावरफुल ही है लेकिन जो क्या नाम है अपना ये सारा कुछ इन दिनों हुआ। करण सर आए तो उन्होंने पहले 4 लोगों को रूम में ख़ास रूम में बुला के गले लगे मुनव्वर के, मनारा के, अंकिता के और अभिषेक के। अभिषेक ने करण सर से माफ़ी भी माँग ली क्योंकि जो गलती की भई धर्मा प्रोडक्शन है, कभी भी मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है, लेकिन ख़ैर माफ़ी माँग ली उसने कि मेरे से लास्ट टाइम जो हुई और फिर वो इन चारों के गले लगे क्योंकि जो इनके साथ उस टाइम हुआ पूरे वीकेंड, वो फिर सारा उन्होंने उस चीज़ पे कि बड़ा बर्दाश्त किया, ये किया और इसी दौरान समर्थ चला गया, समर्थ एलिमिनेट हो गया। देखिए, जब मुझे बड़ा दुःख हुआ समर्थ के जाने क्योंकि मैं चाह रहा था कि अपना आयशा चली जाए क्योंकि वो ज़रा एंटरटेनर था, उसने ज़्यादा आयशा से वो किया अच्छा गेम किया और वो चला गया लेकिन वो चला ही उस गया बात से गया कि जो उसने पोक किया। उसने जो पोक किया है ना उसको
अपना ये अभिषेक के साथ, वो पब्लिक को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इसको आउट कर दिया। बाकी अब देखें फाइनल में कौन जाता है और कल कौन निकलता है, उसका मैं आपको कल बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच। अब मैं डेली आऊँगा, डेली आपको रिव्यू दूँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके सपोर्ट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय, बाय।